بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین اسلام دین آفاقی کا پیغام کلندر کشمیر آفاقی سے سنیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا غوث اعظم بامن بسر و سامام القبل دیم الکعبہ امام، یا غوث اعظم بامن بسر و سامام القبل دیم الکعبہ امام۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، یہ جہاں چیز ہے بہو کرم تیرے۔ یہ اللہ کی ذات، اللہ فرماتے ہیں، علامہ اقبال صاحب کو فرماتے ہیں، اور وہ جو مخاطب ہو جائے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا حد و کرم تیرے۔ قوت عشق سے ہر پس کو بادا کر لے، قوت عشق سے ہر پس کو بادا کر لے، دہر میں اس میں محمد سے ازالہ کر لے۔ پیر پیرا میر میرا شاہ شاہن بینظیر، پیر پیرا میر میرا شاہ شاہن بینظیر، حافظ روح و قلم استادگارہ دستگیر۔ عقل یار ہے سو بیس بنا دیتی ہے، عقل یار ہے سو بیس بنا دیتی ہے، عشق بیچارہ نہ ظاہر نہ ملا نہ حکیم۔ علامہ اقبال صاحب ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میں بہت یہ جو ہے نا عقل اور یہ جو زیادہ گہرائیوں میں جانا، تفکرات میں جانا، یہ زیادہ سوچ و بچار میں جانا، وہ آخر علامہ صاحب اس بات پر پہنچے کہ ان سب چیزوں سے آگے پھر ایک اور منظر ہے۔ وہ فرماتے ہیں گزر جا عقل سے آگے کی نور، علامہ صاحب فرماتے ہیں گزر جا عقل سے آگے کی نور، چراغ راہ منظر نہیں ہے۔ عقل کو فرصت نہیں تنقید سے، عقل کو فرصت نہیں تنقید سے، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ۔ یا ہم حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ، آج 3-4 موضوع ہوں گے ہمارے۔ ایک بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا کیا مقام ہے، روحانی مقام کیا ہے، عشق کا مقام کیا ہے۔ پھر حضرت ابو اسد خرقانی رحمۃ اللہ، ان کے وہ مرید ہوئے ہیں حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے، ان کے واقعات سنائیں گے۔ وہ یہ کہاوت بیان کی جاتی ہے مکے کو بدو، مکے کو بدو، بعض وہ لوگ ہوتے ہیں دور ہوتے ہیں، بعض عاشق مزاج لوگ ہوتے ہیں جو دور ہوتے ہیں۔ میں نے کہیں پڑھا ہے، سنا ہے کہ خدا کی مخلوق میں، مسلمانوں میں وہ اللہ والے بھی موجود ہیں جو 24 گھنٹے نبی پاک کی زیارت میں رہتے ہیں۔ ان کا روحانی مقام یہ ہے کہ وہ 24 گھنٹے جناب نبی پاک کی زیارت میں رہتے ہیں، اپنے دین اس کو دیکھتے ہیں، اپنے دین اس کی زیارت کرتے ہیں، ان کی رہنمائی حاصل کرتے ہیں، ان کی مدد حاصل کرتے ہیں۔ اب ہم یہاں سے تھوڑا سا آپ کو حضرت بایزید بسطامی جو ہیں، یہ حضرت جناب غوث پاک سے نازل کو 100-150 سال پہلے ہوئے۔ بستان میں ایک علاقہ ہے، اس میں وہ آپ رہتے تھے،
इनके मरीज थे अबू हसन खिरकानी रहमतुल्लाह। ये इस किस्म के अबू हसन खिरकानी इस किस्म के अच्छे मजाक मौजूद यार बेइज्जत भाई। ये हज़रत अबू हसन खिरकानी रहमतुल्लाह अलैह ये इतने आशो मजाक बुजुर्ग थे कि ये हर रोज अशा की नमाज के बाद ये बस्ताम में तशरीफ ले जाया करते हज़रत भाई बसामी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार मुबारक ज़ियारत के लिए। 12 मील अंदाजन वहाँ जहाँ का अपना खिरकान का इलाका, वहाँ से 12 मील जनाब जाते थे कहाँ अपने पीर मुर्शद अरे भाई बसवामी रहमतुल्लाह की मज़ार की ज़ियारत के लिए, आदि के लिए। और फिर जिस वक्त वहाँ पर पहुँचे तो आधी रात के वक्त अबू हसन खिरकानी रहमतुल्लाह अलैह अरे भाई बसवामी रहमतुल्लाह के मज़ार पर पहुँचे तो ज़ियारत करने के बाद, आदि देने के बाद, फातिहा पढ़ने के बाद 12 मील वो कमर नहीं कर उधर जब वो अपने पीर मुर्शिद के मज़ार की तरफ, अपने पीर मुर्शिद की तरफ वो अपनी कमर जो है उस तरफ नहीं करते थे। अदब की खातर वो तो कमर नहीं करते थे। 12 मील वापस बगैर एक एक वो उधर अपने पीर मुर्शिद भाई इस्लामियों की तरफ वो कमर करे पीछे पीछे चलते थे। 12 मील जो है वो अंदाजन जाते थे, 12 मील आते थे। बयान करते हैं कि जब 12 साल गुजर गए ना तो हजरत ऐसे अल्लाह वाले हुए ना कि अपने पीर व मुर्शद की अदब की खातर 12 मील जाना, अशा की नमाज पढ़ने के बाद उस इलाके में बसाम में जाना और वहाँ 12 मील आगे वहाँ दरबार पर आगे जाने के बाद 12 मील फिर वापस आते थे। कमर नहीं करते थे, अपनी कमर उस तरफ नहीं करते थे अपने पीर मुर्शिद की तरफ। 12 साल तक हुए तो मज़ार से आवाज़ आई। अरे भाई स्वामी की आवाज़ आई। अगर शाह अब्दुल खिरकानी रहमतुल्लाह तो इसके बाद आप में जाओ में नहीं आना, तुम्हारा जो वजीफा है, तुम्हारी जो मेहनत है, जो जनाब में जो ये इतना तकलीफ बताई है, आज के बाद मेरे मज़ार पर यहाँ पर हाजिर नहीं रहनी है। बस तुम्हारा चिला पूरा हो गया, वजीफा पूरा हो गया। बात मजबूरी की होती है। बाज़ बुजुर्ग वो है जो 50 साल 40 साल विर्द ज़ाहिर करते हैं, बुजुर्गों के पास हाजिर देते हैं, बुजुर्गों की खिदमत करते हैं। तो फिर जब बुजुर्ग खुश होते हैं तो बोलते जाओ तुम्हारा काम हो गया। बात मंजूरी की होती है, अल्लाह की मर्जी की होती है। ये जो दुनिया का निज़ाम चल रहा है ये अल्लाह की मर्जी से चल रहा है। जो बुजुर्ग काम करते हैं ना, अल्लाह वाले वली अल्लाह औलिया, ये भी अल्लाह की मर्जी से ही काम करते हैं। किसी को देते हैं तो अल्लाह की मर्जी के मुताबिक देते, जिसको रोकते हैं अपना साथ वो भी अल्लाह की मर्जी के मुताबिक रोकते हैं। ये ख्याल करना कि जी फलां बुजुर्गों ने ये कर दिया, ये कर दिया, उनको ये पावर नहीं है। अब बाबा ये सब कुछ अल्लाह की मर्जी है, ये सब अल्लाह की मर्जी है और अल्लाह की मर्जी से ही दुनिया का निज़ाम चल रहा है। कोई पैदा हो रहा है, कोई मर रहा है, कोरोना पैदा हो रहा है, कोरोना मरीज आ गए हैं, जा रहे हैं। ये खाली कोरोना नहीं है, ये इस दुनिया में बहुत सारी बीमारियाँ हैं
یہ جگر کی بیماری ہے، پھیپھڑے کی بیماری ہے، یہ معاملات ہے، تو یہ سب کچھ اللہ کی مرضی ہے۔ اللہ کی مرضی جس طرح ہوتی ہے اسی طرح ہوتا ہے۔ اللہ کے معاملات میں بزرگوں نے حکم دیا ہے، ایک بزرگ ہوئے یہاں پر تائل بندگی ہوئے ہیں، وہ بہت بڑے بزرگ سے ولی اللہ بزرگ ہے، ان کا مزار ہے ادھر لاہور میں، بڑے قبرستان میں۔ وہ ایک دفعہ مجھے خواب میں ملے، مجھے فرمانے لگے یہ دنیا کے جو نظام ہے نا، یہ اللہ کی مرضی کے مطابق چل رہا ہے، اس میں مداخلت نہیں کرنی، جو اللہ کا حکم ہو، اللہ کی مرضی ہو، اس کے مطابق چلو، پھر بعد آپ کی کامیابی ہو جائے گی۔ اگر آپ اللہ کے معاملات میں اپنے خیالات کا اس میں وہ دخل دینے کی کوشش کریں گے تو کام اچھا نہیں ہوگا، انجام اچھا نہیں ہوگا۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ حضرت بھائی بسوامی رحمۃ اللہ کا میں نے ذکر کیا ہے، انہوں نے حضرت ابو سن خرقانی کو ساتھ سنایا 12 سال ہو گیا آپ کو یہاں پر آتے ہوئے، 12 دن آنا اور 12 دن واپس جانا، 24 میل کا سفر کرنا ہر روز، کتنی بڑی ریاضت ہے، کتنی بڑی محنت ہے۔ اور پھر اپنی کمر جو ہے وہ بزرگوں کے مزار کی طرف نہ کرنی۔ بعض آپ بزرگ خوش ہوئے نا، انہوں نے فرمایا اس کے بعد حضرت بھائی بسوامی نے فرمایا کہ اس کے بعد میرے اس مذہب پر آپ نے نہیں آنا ہے، تمہارے لیے پابندی لگا دیجیے، بات ٹھیک ہے، جو کچھ آپ نے کرنا تھا کر دیا، تو آپ پاس ہو گئے، آپ کا معاملہ ٹھیک ہو گیا ہے۔ تو کیا مطلب ہے، وہ میں بات کر رہا تھا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ والوں کے قریب رہتے لیکن اللہ والوں کی مخالفت کرتے، مکے کو بدو۔ میں گیا تھا مدینہ شریف، تو وہاں پر میں نے ابو جہل اس کو ابو الحکم کہتے تھے، حکمت کا باپ، بعد میں جب نبی پاک کی مخالفت کی، اس نے ابو جہل نے مخالفت کی، نبی پاک کی مخالفت کی، تو نبی پاک نے کہا تم ابو الحکم نہیں ہو، تم ابو جہل ہو، تو حکمت کے باپ نہیں ہو بلکہ جہل کے باپ ہو۔ وہ جو ہے نا، وہ اس کا مکان، اس مکان میں آج کل وہاں چیزیں بنی ہوئی، لوگ جہاں کا وہاں جا کر پیشاب کرتے، یعنی سرکار نبی پاک کی مخالفت کی وجہ سے اس کا انجام یہ ہوا کہ ابو الحکم کی بجائے ابو جہل بن گیا، اس کی مقابلے میں وہ چیزیں بن گئی، لوگ اس کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ کہ میں اللہ والوں کی اطاعت کرنی چاہیے اور یہ بھی اللہ کے لیے کرنی چاہیے، یعنی بزرگوں نے نقطہ بتایا کہ جو کام کریں نا آپ خدا کی رضا کے لیے کریں۔ جب آپ اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام کریں گے تو کیا ہوگا، آپ کی شان بڑھے گی، اللہ خوش ہوگا، نبی پاک خوش ہوں گے، آپ غوث پاک خوش ہوں گے، صحابہ کرام خوش ہوں گے۔ تو جب بنیادی طور پر آپ کی نیت بھی درست ہو، نبی پاک کا شان گرامی ہے، 2 حدیثیں سنیں نبی پاک برکت کے طور پر، نبی پاک نے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دارمدار نیت ہو رہا ہے، جیسے انسان کی نیت ہوتی ہے ویسے اس کو ملتا ہے، جزا ملتی ہے۔ وہ ایک آدمی ہے نماز پڑھتا ہے، واز کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، سجد پڑھتا ہے، لیکن ساتھ ہی شومنٹ کرتا ہے، تو شومنٹ کرنے سے عمل جو ہے وہ ریاکاری کی طرف میں آ جاتے، تو بجائے اللہ کو خوش کرنے کا آدمی جو ہے اللہ کو ناراض کرتا کہ بھائی اس نے میری ذات کے لیے ایسا نہیں کیا ہے،
यहाँ मैं एक हदीस बयान करके आगे चलता हूँ। हदीस बुखारी से भी है, क़यामत का दिन होगा। बुखारी से की हदीस है जो मैं बयान करने लगा हूँ। क़यामत का दिन होगा तो एक शहीद को लाया जाएगा, एक शहीद को लाया जाएगा। अल्लाह पूछेगा उस शहीद से, तुमने क्या किया, तुमने क्या कार्रवाई की, क्या काम किया, क्या अमल किया। वो शहीद कहेगा जी मैंने अपनी जान कुर्बान की, मैं शहीद हुआ, अपनी जान कुर्बान की आपके लिए, मैंने ये काम किया। हदीस शरीफ में आया है, अल्लाह फरमाएंगे उस शहीद की बात सुनकर, फरमाएंगे तुम कहते हो कि मैंने शहादत का मरतबा मुझे मिलना चाहिए, मैंने शहादत पाई, आज शहीद हुआ हूँ मज़हब इस्लाम की खातिर। ये असल में जो तुमने काम किया जो शहादत का मरतबा मिला, ये तुमने 10 शो मिनट के लिए किया है कि लोग मुझे शहीद के हैं, बहादुर के हैं। तो तुम शहादत का मतलब तुम्हें नहीं दिया जाता इसलिए कि तुम्हारी नीयत में नुक्स था, आमाल को दारना नीयत पर। जैसा इंसान की नीयत होती है वैसा ही उसको वैसी जान। एक और हदीस है नबी पाक की, सरकार ने साथ सुनना है, नबी पाक ने साथ सुनना है, नीयतुल मोमिन खैरुन मिन अमलिही, मोमिन की नीयत उसके अमल से बेहतर है। ये मोमिन की नीयत होती है वो उसके अमल से ज़्यादा पाकीज़ा होती है, साफ से अच्छी होती है। और मैं हदीस बयान कर रहा था, वो जब हदीस से वो जो शहीद है ना, वो अपनी दलील पेश करेगा, अपना कार्रवाई पेश करेगा कि मैं शहीद हुआ हूँ इस्लाम की खातिर, अल्लाह की खातिर। अल्लाह फरमाया तुम्हारा मकसद मुझको राजी करना नहीं था, तुम्हारा मकसद इस्लाम और नज़र ये था कि लोग तुम्हें बहादुर के हैं, शहीद के हैं और तुम्हारी नामवरी हो, जाओ तुम्हें दोजख में भेज जाएगा। अब दोजख में भेजने वाले अल्लाह के साथ हैं। अब वहाँ पर कौन पूछना करे कि ये अल्लाह ने हुक्म दिया है, क्यों दिया है। वो आदमी शहीद हुआ है अगर, तो फिर अल्लाह फरमाते हैं कि दोजख में भेज। अल्लाह फरमाएंगे इसने ये नामवारी करी है, शोमिल के लिए ऐसा किया, इसको दोजख में भेज। फिर एक सखी को लाया जाए, हदीस में आया बुखारी शरीफ में, एक सखी को लाया जाए, क़यामत के दिन ये होगा कार्रवाई, जो कार्रवाई होने वाली है उसको नबी पाक ने इरशाद फरमा दिया है, ये होगा। वो जो है ना सखी, उसको लाया जाएगा। तुमने भाई क्या किया, जो मैंने कमाई की, दोनों कमाई, तो उस दोनों को मैंने तो आपके नाम पर मैंने लोगों को तकसीम किया, तो आपके लिए मैंने ये दोनों खर्च की, खुदा वास्ते दी। अल्लाह फरमाएंगे ये जो तुमने किया ना, ये शोमें के लिए किया है, दिखावे के लिए किया है, तुम्हारा मकसद मुझको राजी करना नहीं था, बल्कि तुम लोगों में अपनी शोध नंबरी के लिए ऐसा किया, नमाज के लिए तुमने किया। जब मैं तुमको दोजख में भेज दूँ, उसको भी बात दोजख में भेज देंगे। एक आदम होगा, उसको लाया जाएगा, उसे पूछा जाएगा तुमने क्या किया। जी मैंने इल्म पढ़ा है, इल्म पढ़ने के बाद मैंने उसके वाज किया है, मखलूक को समझाया, तो मैं सारी उम्र ऐसा ही करता रहा। अल्लाह ने फरमाया, नबी पाक फरमाते हैं अल्लाह फरमाएंगे, आगे वो फरमाया नहीं, फरमाएंगे पहले कबल वक्त
नबी पाक ने आका फरमाया ये बात होगी। वो जो है ना वो आलम सखी शहीद तीनों को तो तुम्हें दे दिया जाएगा। आदम को कहा जाएगा तुमने जो इल्म पढ़ा है, जो इल्म सुनाया है, वार किया है, वो दिखावे के लिए किया है। शहीद को कहा जाएगा तुमने जो शादी का मतलब आप तुम बयान करते हो, इसमें तुम्हारी नीयत 100 मिनट की थी, मेरी आज़ादी थी। आदम को भी यही कहा जाएगा, शहीद को भी यही कहा जाएगा, वो जो सखी है उसको भी यही कहा। या मतलब ये बरामद हुआ कि जो भी आप काम कर रहे हैं वो मैं अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहे हैं, नबी पाक की रज़ा के लिए कर रहे हैं, तो फिर आप का वो जो अमल है उसका आपको सही फायदा पहुँचेगा। अब हम आते हैं, पिछली दफ़ा हमने अगर बाईवी गोस्वामी रहमतुल्लाह का वाक़या बयान किया था, लेकिन वो जो प्रोग्राम खत्म हो गया था। याद कहाँ पहुँचे थे कि अगर बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह, अगर बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह मस्जिद नबवी के बाहर खड़े हैं तो रो रहे। लोगों ने कहा अगर बायजीद बस्तामी को कि आप ना पर ये नबी की मस्जिद नबवी है, आप अंदर आए तशरीफ लाए तो आपको सवाब होगा, हम आप ठीक होंगे। अरे भाई फरमाने लगे ये वो मस्जिद है जिसमें नबी पाक ने अपने 10 मुबारक से, नबी पाक ने अपने 10 मुबारक से यहाँ पर पत्थर लगाए हैं। नबी पाक ने मस्जिद ने अपने 10 मुबारक से पत्थर लगाए। आप उन पत्थरों जिन पर नबी पाक ने 10 मुबारक लगाए, अब वहाँ मैं कदम रखूं तो ये बेअदबी होगी, इसलिए मैं मस्जिद के अंदर दाखिल नहीं होता, बाहर से बस सलाम कर। यानी इतना अदब करते थे वो। यहाँ इन बुजुर्गों का जिक्र करता हूँ मैं। तरकत वलिया एक किताब है, शेख फरीद अत्तार रहमतुल्लाह ने किताब वो लिखी है, तरकत वलिया, वलियों का तज़किरा जिक्र। उसमें अंदाज़न कोई 99 के अल्लाह के वलियों का के जो है वो वाक़यात है। वहाँ पर ये एक वाक़या लिखा है, अगर बायजीद बस्तामी हज करने के लिए जा रहे थे, अगर बायजीद बस्तामी हज करने के लिए जा रहे थे, रास्ते में एक बहुत बड़े कामल अकबर वली अल्लाह बुजुर्ग उनका घर था। वो जो बायजीद बस्तामी थे ना, उन्होंने कहा चलो ये अल्लाह के वली है, अल्लाह के दोस्त हैं, तो इनसे मिलते चले। चलो पहले इनसे मिलते, बाद में यहाँ से हम मक्का शरीफ चले जाएंगे आज का गए। उस किताब में लिखा है तरकत वलिया में कि अगर बायजीद बस्तामी जाकर वो जो बुजुर्ग थे ना, इनको मिलने के लिए गए रास्ते में, जब उनके करीब बैठे, वहाँ उनके पास और बुजुर्ग भी बैठे थे, कुछ लोग बैठे थे। अगर बायजीद बस्तामी फरमाते हैं मैं जाकर मैंने उनके वजूद बार को दबाना शुरू किया। किसने कहा? अरे बायजीद बस्तामी फरमाते हैं मैंने उन बुजुर्गों को के हाथों को, पाँव को दबाना शुरू किया। वो बुजुर्ग जो थे ना लेटे हुए थे, आंखें बंद किए और फिर लेटे हुए थे। तब मैंने हाथ रखा ना उनके बुजुर्ग हाथों पर, पाँव पर, तो आंखें बंद किए हुए बोले ये किस अजीज के हाथों से अल्लाह की आवाज़ आ रही। ये बात सोचने वाली है, समझने वाली बात है। वो बुजुर्ग आंखें बंद कर लेटे हुए थे।
भाई स्वामी फरमाते हैं मैंने उनके जो वजूद बात था ना, हाथों पर पाँव पर बदन पर मैंने अपना हाथ रखा, जब दबाना शुरू किया ना, तो वो जो बुजुर्ग से ना, वो किताब में लिखा है तोले में, वो बुजुर्ग बोलने लगे ये किस अजीज के हाथों से, जुबान से नहीं, किस अजीज के हाथों से अल्लाह के जिक्र की आवाज है। उन्होंने कहा बारे उन्होंने फरमाया, मैंने उन बुजुर्गों को कहा मेरा नाम है हजरत बाजिद बस्वामी, हजरत बाजिद बस्वामी मेरा नाम है। मैं आज मुझे वो बुजुर्ग पूछने लगे बाजिद बस्वामी कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा जनाब मैं हज करने के लिए जा रहा हूँ। वो बुजुर्ग बोलने लगे बाजिद बस्वामी ऐसा करो ना, जितने पैसे तुमने हाथ पर खर्च करने वो सब मेरे आगे रखो, आगे करो, मेरे आगे रखो और मेरे आगे पीछे 7 चक्कर लगाओ। वो बुजुर्ग सुनाने लगे कि 7 चक्कर मेरे आगे पीछे लगाओ और सारी जो पैसे हाथ पर खर्च करने यहाँ पर मुझे दे दो, मैं लोगों को पैसे देने ही रखो पैसे, मैं आप पर कर्जा चालूंगा, तुम मेरे आगे पीछे 7 चक्कर लगाओ और काम चले दो। हमारा आज हो गया। अब भाई बस्वामी जो थे वो जानते थे सारे नजर से कि ये जो बुजुर्ग जो फरमा रहे हैं कि आज की तरह ना जाओ, मेरा चक्कर लगाओ, आगे पीछे चक्कर लगाओ तो हमारा हाथ हो जाएगा। उन्होंने इनकार ही किया, क्यों कहते हैं वजीरा वजीर नातन, पीर को पीर समझते हैं, बुजुर्ग को बुजुर्ग समझते हैं, सारे नजर को सारे नजर समझते हैं। वो कहते हैं अंधा क्या जाने पसंद की बात, जिसकी अपनी आंख नहीं है, बसीरत नहीं है, रोशनी नहीं है, सारी नजर नहीं है, सादे अकीदत नहीं है, सादे अदब नहीं है, सादे बसीरत नहीं, तो उसको कहा अने साल मुझे पूछा रहा कोई नदी है। आदत बाजिद स्वामी फरमाते हैं मैंने इनकार नहीं किया कि ये आप क्या फरमाते हैं, आज कहाँ है आपके पीछे आगे पीछे चक्कर लगाना, ये कहाँ है, ये कैसा मुमकिन हो सकता है कि मैं आपके आगे पीछे चक्कर लगाऊँ मेरा हाजुद है। वो बाजिद स्वामी जानते थे ना इनके अंदर। बाजिद स्वामी ने वो जो आज की रकम थी ना वो सारी उन बुजुर्गों के आगे रखी। मैंने कहा मैंने कुछ कर्जा लोगों का देना है, तो आप वो रकम आज वाली यहाँ पर मुझे दे जाए, मेरे आगे मेरे 7 चक्कर लगाओ। भाई स्वामी फरमाते हैं मैंने वो सारी रकम उनके आगे रखी, उनके आगे पीछे 7 चक्कर लगाए, तो वापस आए, उधर वापस चले जाओ, कहाँ चले जाओ, मेरा हाथ हो गया। अभी भाई फरमाते हैं जब मैंने वो रकम उनके आगे रखी, उन बुजुर्गों के आगे 7 चक्कर लगाए उनके आगे पीछे, तो जब वापस चला ना, वापस उन्होंने मुझे बताया, फरमाने लगे अल्लाह ने एक लफ्ज़